The first information is about coordinate geometry is that this is x-axis, this is y-axis. There are positive numbers on right side on x-axis and negative numbers on left side on x-axis. There are positive numbers on the upper side of x-axis and there are negative numbers on the lower side of x-axis on y-axis. Okay, now these two axes divide this page or graph paper into 6 parts. Out of them there are 4 parts. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Any point according to this lies in 6 places. Out of them are 4 quadrants, and the next is it lies either on x-axis or on y-axis. Okay, so there are six places. Now if there is any point, suppose here is a point and here is b point, what is the distance between these 2 points, point A and point B? Now we have learnt distance of AB, it is greater coordinate minus smaller coordinate, or again greater coordinate minus smaller coordinate. Now what is the greater coordinate here? 4 minus what is the smaller coordinate here? Negative 4. Therefore 4 plus 4 it will become 8. That is the distance between A and B. Now these 2 points lie on the same axis, that is they are on x-axis. Now suppose I take C point here on y-axis and D point here on y-axis. Again what is the distance between point C and D? Point C and D का distance है, point C and D का distance है greater coordinate minus smaller coordinate. 3 minus negative 4, it will become 3 plus 4, it will become 7. Okay, this is one method in which we can use coordinate geometry. Now the distance between 2 points. Number two, what is the distance between 2 points? If the first point is on the line which is parallel to any of the axes. Okay, now this line suppose is parallel to line PQ. If line PQ is parallel to x-axis and we have to find out the distance between points P and Q, then what will happen? Automatically we will have to find the perpendicular segments from P and Q to x-axis. अगर P से मैंने x-axis के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट -3 है, तो P का कोऑर्डिनेट भी, P का पॉइंट भी, x कोऑर्डिनेट भी -3 आ जाएगा. ओके, एंड Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि वो 5 के ऊपर परपेंडिकुलर है. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PQ? इसका मतलब है अगर मैंने इसको x और y नाम दे दिए तो डिस्टेंस ऑफ xy is equal to distance of PQ as they form rectangle. PXYQ becomes a rectangle and therefore distance of PQ is equal to distance of XY. Now we know how to find the distance of XY. Distance of XY is equal to 5
minus -3, it is 5 plus 3, it is 8. सेम टू सेम डिस्टेंस ऑफ PQ भी 8 आ जाएगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है PQ और XY. therefore XY will become equal to PQ, and therefore if XY's distance is 8, PQ's distance will be 8. दो मेथड्स मैंने सिखाए अभी. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इफ both the points are either on x axis or on y axis, we can use the formula greater coordinate minus smaller coordinate. अब दूसरा मेथड मैंने ऐसा बताया कि अगर दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं है और वाई एक्सिस के ऊपर भी नहीं है, लेकिन दोनों पॉइंट ऐसे लाइन पे है जो आइदर एक्स एक्सिस को पैरेलल है या वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो उसका डिस्टेंस, उनमें से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसको P से हमको एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है और Q से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है. तो अगर ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो रेक्टेंगल फॉर्म होता है और XY इज इक्वल टू PQ. हम XY का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो XY का डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ का डिस्टेंस होता है. चलो, ऋतुजा, what I was telling you or what I was teaching you, if you are understanding, please give me thumbs up. Rutuja, Yes, thumbs up. Vivek, thank you, Rutuja. Vivek. Okay, thank you, Arnav. Yes, thank you, Parth. शायद आदिति मानसी नाम से बेटी है. आदिति, are you there? Aditi? Yes, sir. Okay, you can show me just thumbs up. Yes, thank you. Okay, now I am going to take third step here. थर्ड पॉइंट मेरा कौन सा है? अगर ये दोनों पॉइंट, अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस को पैरेलल है, अगर ये दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस को पैरेलल है तो भी वैसा ही होगा. ये दोनों पॉइंट्स ऐसी लाइन पे है जो वाई एक्सिस को पैरेलल है. अभी देखो ये सेम टू सेम. ओके, अब ये मैं इसको एक्स और वाई नाम दे दूंगा. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई? ऑटोमेटिकली ये 4 और -3 का डिस्टेंस जो है, 3 और -4 का डिस्टेंस जो है वही एक्स वाई का डिस्टेंस आ जाएगा. ओके, ये दूसरा पॉइंट था मेरा. अब तीसरा पॉइंट और एक है, हम उसके लिए जाएंगे. अब तीसरा पॉइंट क्या है? 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगा तीसरा पॉइंट क्या है. देखो, ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट. अगर ये पॉइंट P है वो y एक्सिस पे है और ये पॉइंट Q है वो x एक्सिस पे है, तो व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PQ? ओके, तो व्हाट विल हैपन नाउ इट विल हैपन दैट P अगर ये y एक्सिस पे है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा. नाउ व्हाट, अगर इसको मैंने O नाम दे दिया तो OP होगा 4 और OQ होगा 3. PQ will become the right angle hypotenuse of right angle triangle, and therefore we can use one formula, and that is PQ square is equal to OP square plus OQ square. OP square 4 square plus 3 square, 16 plus 9, it will become 25, and therefore PQ's distance will be 5. Okay, this is third point. मेरा पहला पॉइंट था दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर है. दूसरा पॉइंट ऐसा था दोनों पॉइंट ऑन द लाइन है जो आइदर एक्स एक्सिस को पैरेलल है या वाई एक्सिस को पैरेलल है. अब मेरा तीसरा पॉइंट ऐसा है कि जो दोनों पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स, वन पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड द अदर इज ऑन वाई एक्सिस. कहीं पे भी लिख सकते हैं हम. ये अगर ये पॉइंट P है और यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट R लिया यहाँ पे, तो हम PR के बारे में भी पता लगा सकते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PR? The same will be there. This distance will be 5 and this distance is 4. 5 square plus 4 square, 25 plus 16. PR will be under root 41. Okay, ये मेरा थर्ड पॉइंट था. आई थिंक आपको सब ये समझ में आ रहा है. ओके, अर्णव, पार्थ, अदिति, विवेक. ओके, नाउ the fourth point is very important because we are learning the main formula
फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मैंने अभी तक आपको जो सिखाया वो भी हम उस फॉर्मूले के ऊपर से हम निकाल सकते हैं। अभी वी आर गोइंग टू टेक दैट पॉइंट ओनली। जस्ट 1 minute, I am drawing one another figure. Okay, this is x-axis, this is y-axis, and now yes, this is y-axis, this is x-axis. Again there are points 1, 2, 3, 4, 5। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। अगेन 1, अगेन 2, अगेन 3, अगेन 4, -1, -2, -3 और -4। अब मैं क्या करता हूं, मेरे दोनों पॉइंट जो मैं x एंड y ले रहा हूं वो किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, किसी लाइन के ऊपर नहीं है जो पैरेलल है, और एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर और दूसरा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ऐसा भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा पहला पॉइंट होगा यहाँ पे और मेरा दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे। गेटिंग दिस? ओके, now I am going to find out the distance between these 2 points. Okay, I am going to find out the distance between these 2 points. Now can you tell me what are the coordinates of point A? अगर मैंने इसको A नाम दे दिया, what are the coordinates of point A? The answer is A के coordinates है 2 और 3. ओके, क्योंकि इससे A पॉइंट से अगर x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो 2 से जाएगा, और y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो 3 से जाएगा। अब what are the coordinates of point B? They will be 5 and 1. x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा 5, y कोऑर्डिनेट होगा b, sorry 1. Now what is the distance between AB? Now we have to find out the distance between AB. Okay, now I am going to draw this line, this segment. Okay, now 1 minute. Yes, now tell me what is the distance, how can we find? Now I will tell you some steps. 1, ये B के ऊपर से और A के ऊपर से आपको क्या करने का है, आपको B के ऊपर से और A के ऊपर से परपेंडिकुलर डालने का x एक्सिस के ऊपर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ, यस, वन फर्स्ट परपेंडिकुलर एंड दिस इज सेकंड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब और क्या करने का है, और B के ऊपर से और A के ऊपर से हमको y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालने का है। ओके, दिस इज फर्स्ट परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर और दिस इज सेकंड परपेंडिकुलर। गेटिंग? अब मैं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया है, यहाँ पे M नाम दे दूंगा। तो मुझको बोलो कि ट्राइंगल AMB क्या हो गया, ये ट्राइंगल AMB राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब अगर ट्राइंगल AMB राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया है तो AB का डिस्टेंस तो निकालेंगे तो AB तो हाइपोटेनस आएगा, लेकिन हमको AM मालूम होना चाहिए, करेक्ट है, और हमको BM भी मालूम होना चाहिए, वो भी करेक्ट है। अब AM निकाल सकते क्या, तो डेफिनेटली निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, क्योंकि AM इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है वो AM का डिफरेंस आएगा, आपको पता चल रहा है अभी। और MB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो MB जो है वो ऐसे लाइन पे है जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वही MB का आ जाएगा। तो हम हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AM? यस, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 3 - 1। गेटिंग दिस? 3 - 1। ओ, ये 3 है यहाँ पे और 1 है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको x1 और y1 नाम दे दूंगा, अगर मैं इसको x2 और y2 नाम दे दूंगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि y1 माइनस y2, ये जो डिस्टेंस है वो है AM इज इक्वल टू y1 माइनस y2। और अगर मुझको MB निकालने का है तो क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 5 है, इसका कोऑर्डिनेट 2 है, तो BM इज इक्वल टू क्या होगा, वो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, ये कुछ भी करेंगे हम तो चलता है। तो अगर AMB राइट एंगल ट्राइंगल है
AMB is right angle triangle, देखो AMB is right angle triangle, तो क्या होगा, by Pythagoras theorem AB square is equal to AM square plus BM square. हमको तो AB चाहिए, AM क्या होगा, AM होगा ये, AM होगा y1 minus y2 whole square plus BM क्या होगा x1 minus x2 whole square. अब ये जो है वो वैल्यू किसकी है, ए बी स्क्वायर की है, लेकिन अगर हमको ए बी की वैल्यू चाहिए तो हम अंडर रूट ये लेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसको हम y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस. नाउ ये 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 और ये 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, ये आ जाएगा अंडर रूट 13. चलो समझ में आ रहा है? विवेक, अर्णव, यस थैंक यू अर्णव, अदिति थैंक यू, ऋतुजा आपको समझ में आ रहा है? ऋतुजा यस थैंक यू ऋतुजा. अभी मैं क्या करता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल दे दूंगा. अभी हमको यहाँ पे फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, what is the distance between 2 points, what is the formula, under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. अगर किसी ने y2 minus y1 का लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आंसर में कौन सा भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, आंसर वही होगा जो हम चाहते हैं. ओके, नाउ आई विल टेक वन न्यू एग्जांपल एंड डायरेक्टली वी कैन फाइंड. अगर हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, नाउ मेरे पास जो एग्जांपल है वहां पे फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6 एंड 7 एंड सेकंड पॉइंट इज जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड -5. नाउ अभी अगर मैंने इसको P नाम और इसको Q नाम दे दिया तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट इज सॉल्व्ड. हियर x1 is equal to -6, y1 is equal to 7, x2 is equal to -1, y2 is equal to -5. Now by distance formula, PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ओके, नाउ व्हाट इज x2? x2 इज -1. अब देखो माइनस -7 है तो हम ये डायरेक्टली यहाँ पे +6 लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर -5 माइनस 7 होल स्क्वायर. अब ये -1 प्लस 6 आएगा 5 स्क्वायर, प्लस -5 और -7 के एडिशन आएगी -12 स्क्वायर. अब ये फाइनली ऐसा होगा 5 स्क्वायर का आंसर है 25 और -12 स्क्वायर आ जाएगा +144. इसका आंसर एडिशन होगा 169 और उसका आंसर होगा 13 एंड देयरफॉर व्हाट इज द डिस्टेंस, 13 यूनिट्स. गेटिंग दिस एवरीबॉडी? थैंक यू अदिति, यस ऋतुजा, यस थैंक यू एवरीबॉडी. पार्थ, अर्णव, विवेक, thank you very much. Now you can solve this example and I will take new example. You can solve this example. I will give you just one example and after completion you can tell me completed. There are innumerable examples which we are going to solve now. Yes, somebody has completed this. Yes, thank you Parth.
Yes, okay. Okay, Aditi. चलो ओके, और एक एग्जांपल मैं ले लूंगा. द कोऑर्डिनेट्स आर हियर. कोऑर्डिनेट्स आर a plus b, comma b plus c. Suppose that point is p and q's coordinates are a minus b and b minus c. Sorry, c minus b. Okay. Now here again, x1 is equal to a plus b, y1 is equal to b plus c, x2 is equal to a minus b, and y2 is equal to c minus b. Okay. Now distance of pq by distance formula, we are going to write x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now what is x2? It is a minus b. x2 is a minus b minus a plus b. अब x1 है तो ये भी क्या करेंगे हम, माइनस बेच जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 c माइनस b माइनस c. ओके, इट विल होल स्क्वायर. अब ये आ जाएगा a माइनस a कैंसिल, माइनस b माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस c माइनस c कैंसिल, माइनस b माइनस 2b होल स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस 2b का स्क्वायर आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, टोटल ये आ जाएगा 8b स्क्वायर. अब हमको इसका क्या करने का है, स्क्वायर रूट निकालने का है. तो 2√2b, दैट इज द फाइनल आंसर. ओके, 8 का स्क्वायर रूट है 2√2 और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है b. समझ में आ गया? ऋतुजा, अदिति, विवेक. ओके विवेक, अदिति, यस. अर्णव, yes, thank you. चलो, write down this example also, then we will take third example. कंप्लीट होने के बाद बता देना कि कंप्लीट हो गया है. चलो, और एक एग्जांपल लेंगे हम. यस, थैंक यू अदिति, थैंक यू. और एक एग्जांपल लेंगे हम. फाइंड, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दैट एग्जांपल. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. राइट डाउन दिस एग्जांपल. फाइंड द वैल्यू of a when the distance between the points, when the distance between the points, when the distance between the points 3a and 4 1 is under root 10, is under root 10. Okay, now let आंसर चल रहा है मेरा अभी. लेट, देखो, P 3a and Q 4 1. Okay, the points are here. Here x1 is equal to 3, x2 is equal to 4, y1 is equal to a, y2 is equal to 1. Now, and distance, by distance formula, pq is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब देखो pq की वैल्यू दिया उन्होंने अंडर रूट 10. नाउ आई एम गोइंग टू राइट अंडर रूट 10. अब x2 माइनस x1 ये आ जाएगा x2 माइनस x1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस a होल स्क्वायर. अब देखो मैं एक स्टेप करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड.
अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का मतलब क्या होगा, ये 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकल के जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट निकल के जाएगा। 4 माइनस 3 का आंसर आएगा 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर। ओके, क्या किया मैंने यहाँ पे 1a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया। 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर। अब 10 इज इक्वल टू 2 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर। अब ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको फैक्टर्स उसके मालूम है, a माइनस 4 और a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर है a इज इक्वल टू आइदर 4 आएगा या a इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। चलो समझ में आ गया? Yes, Aditi, thank you. Rutuja, thank you. Okay. Yes, thank you, Parth, Arnav, Vivek. Okay. Now write down. We are ending today's batch now. Though there are 5 minutes left, but we are ending. After that, I will be giving you example, and I will be posting one pure paper today. Again, I am telling, one pure paper of 35 questions I am going to post today on the group. Try to solve as much as you can. Try to solve as much as you can. After 2 minutes, I am ending the batch. Till then, you will write this example. Sir. A is equal to 4 और A is equal to minus 2, ये फाइनल आंसर है। सर सर यस, अगर आपका खत्म हो गया है, यस पार्थ, ओके, अगर आपका खत्म हो गया है तो हम ये आज की मीटिंग एंड करेंगे और कल मिलेंगे, ठीक है? पार्थ, तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सर। यस अदिति। Rutuja, I have no problem at all. Can you please take the class at 5? ओके रुतुजा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज कि ऑनलाइन बोल रही है या ऑफलाइन बोल रही है, क्योंकि उस दिन ऑफलाइन क्लास लिया था मैंने तो अदिति नहीं आई थी, रुतुजा नहीं आई थी और विवेक भी नहीं आया था, ठीक है? ऑनलाइन। चलो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।